Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So today I am here in front of you for the explanation video of lesson 12. So in today's video I will explain you lesson 12 and the name of the lesson is the future tense. So as you all know, and you all have seen the previous videos. In that videos I have explained lesson 10, that was the present tense, and lesson 11, that was the past tense. So we are talking about the tense in our syllabus. So today I will explain you what is future tense. I will explain all about future tense, so you all have to watch this video fully to understand the topic well. So before moving forward, let's take a quick revision of tense. What I have told you about tense, that the form of a verb tells that which tense is there in the sentence. So there are three types of tense. First is present tense, second past tense, and third is future tense. So what present tense tells? Present tense talks about the actions that are happening in your present, जो आपके प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में बात करता है. पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट द एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट टेंस किसके बारे में बात करता है? जो आपके भूतकाल में, आपके गुजरे हुए समय में हो चुका हो. नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. सो इन टुडेज video I will discuss about future tense only. So future tense talks about the actions that will happen in your future. So to understand future tense, let's see what is future tense first of all. So let's see what is future tense. Here is written a proper definition. The future tense describes an action that will take place or is expected to take place in the future. Future tense एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो आपके फ्यूचर में होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आशा की जा रही है कि आपके फ्यूचर में वो होगा. जो भी आपके फ्यूचर में होने वाला है या जो भी एक्सपेक्टेड है, दैट विल कम अंडर फ्यूचर टेंस. सो इन सिंपल वर्ड्स आई हैव टू टेल, दैट इज जो भी आपके फ्यूचर में होगा दैट विल कम अंडर फ्यूचर टेंस ओनली. लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट इज द एस्ट्रोनॉट्स विल रिटर्न टू अर्थ नेक्स्ट मंथ. सो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अगले महीने तक अर्थ पर यानी पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे. सो कब आएंगे? नेक्स्ट मंथ आएंगे. दैट मीन्स इट विल हैपन इन फ्यूचर. नेक्स्ट इज ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 8 AM. वो अपना काम जो है 8 बजे सुबह तक पूरा कर चुका होगा. सो कब करेगा? सुबह के 8 बजे तक. अ पर्टिकुलर टाइम इज बीइंग गिवन हियर, सो दैट मीन्स फ्यूचर में होगा. सो जो भी एक्शंस, जो भी इवेंट्स आपके आते हैं फ्यूचर में होने वाले होते हैं, दैट विल कम अंडर फ्यूचर टेंस. सो एज I have already explained that each tense contain 4 forms, that is indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So the same thing is happening with future tense also. Future indefinite tense is there, future continuous tense is there, future perfect tense is there, and future perfect continuous tense is there. In today's video I will explain each tense thoroughly. I will explain the formulas of each tense and I will explain it through examples also. So let's see what is the first topic. So our first topic is future indefinite tense, which is also called simple future tense. Future indefinite tense को हम simple future tense भी कहते हैं. Let's see a proper definition. It is used for actions that will take place at some point in future. ये ऐसे actions के बारे में बात करता है जो एक point पर आपके future में होने वाले हैं, जो आपके फ्यूचर में होंगे एक समय पर. उन एक्शंस को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? दैट विल कम अंडर सिंपल फ्यूचर टेंस. लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट एग्जांपल इज वी शैल कंप्लीट दिस असाइनमेंट सून. हम इस असाइनमेंट को जल्द ही पूरा कर लेंगे. सो हम कैसे पता चला दैट इट इज़ फ्यूचर? दैट मीन्स हमें पता चला शैल and complete. The helping verb of future indefinite tense is shall and will according to the subject. हम क्या करते हैं? I, वी एंड दे के साथ हम शैल लगाते हैं. ही, शी, यू एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स, उसके साथ हम विल लगाते हैं. सो हेयर वी इज गिवन, दैट्स वाई हमने क्या किया है? शैल लगाया है. वी शैल कंप्लीट दिस असाइनमेंट सून. जल्द ही हम इस असाइनमेंट को पूरा कर लेंगे. सो दैट मीन्स कब करेंगे? अपने फ्यूचर में पूरा करेंगे, एक पॉइंट पर पूरा करेंगे एंड पर्टिकुलर टाइम इज नॉट बीइंग गिवन हेयर. नेक्स्ट इज ही विल स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. अगले साल से वो क्या करेगा? इकोनॉमिक्स पढ़ेगा.
कब पढ़ना स्टार्ट करेगा, फ्यूचर में. सो विल हेयर इज गिवन बिकॉज ही के साथ हम विल लगाएंगे. सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ विल दिया है अकॉर्डिंग टू ही. सो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, विल एंड शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. So that is future indefinite tense, which talks about actions that will take place at some point in future. I have explained. I hope you all have understood it well. So let's see the formulas, how we can form a sentence in simple future tense and future indefinite tense. So let's see the formulas of simple future tense. Okay, first of all I will explain you the formula of affirmative sentences, that is also called positive sentence. So positive का हमारा sign होता है plus. Here the signs are being given. So plus से आपको पता चल रहा है we are talking about positive, that is affirmative also. So the formula is subject plus will shall according to the subject, then verb first form, and then plus object, and then plus full stop. Okay, so the whole formula is that subject will shall plus verb first form plus object plus full stop. will and shall हम according to the subject लगाएंगे. हम किसके साथ, I, we, they के साथ shall लगाते हैं. you, he, she, it प्लस आपका जो प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट्स उनके साथ आप विल लगाते हैं. ओके, लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सो ओनली अ चेंज विल बी देयर, दैट मीन्स विल एंड शैल के बाद आपका नॉट आ जाएगा. सो सब्जेक्ट will shall plus not plus first form of verb plus object plus full stop. Next is interrogative. By the question mark you are able to understand that we are talking about the formula of interrogative sentences. So here we will start with the helping verb will shall according to the subject, then subject आ जाएगा plus first form of verb plus object plus question mark. So these are the formulas of simple future tense which you have to learn properly if you have to form a sentence in simple future tense. Okay, so let's see the examples to understand it better. First it is written I have a toothache. toothache means होता है दर्द, टूथ में दर्द यानी दांत में दर्द होना. I take some medicine. I'll take some medicine. मेरे दांत में दर्द है और मैं कुछ मेडिसिन लूँगा. तो यहाँ पर यूजेज क्या दिखा रहा है, फॉर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच. ऐसे एक्शंस जो आप बोलते समय डिसाइड करते हो कि अभी आप बोल रहे हो और आप उसे फ्यूचर में करोगे. ओके, सेकेंड इज विंटर विल कम सून. सर्दियाँ जल्दी आ जाएंगी. सो किसके बारे में बता रहा है, फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस. ऐसे फ्यूचर एक्शंस जो प्लान्ड नहीं है, यहाँ बोल रहा है जल्दी आ जाएंगी. नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड वी विल गेट वेट. मैं डर रहा हूँ कि हम भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे. सो यहाँ क्या पूछ रहा है, फॉर ऑफरिंग, कुछ ऑफर करना. आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट, कोई आप रिक्वेस्ट किसी से करते हो. एंड प्रॉमिसिंग, किसी से प्रॉमिस करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो. थ्रेटनिंग मीन्स या आपको किसी चीज़ का डर हो, तब आप क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. सो हेयर इट इज़ शोइंग द थ्रेटनिंग, मुझे डर है कि हम गीले हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज समर विल कम सून. सो जैसे हमने पढ़ा था विंटर विल कम सून एंड समर विल कम सून, जो गर्मियाँ हैं वो जल्दी आ जाएंगी. सो हेयर what it is showing unpreventable actions in future. So unpreventable जो होता है, unpreventable means होता है अनिवार्य, means those type of actions which are compulsory which will happen in future on the compulsion basis. So that means they will come under सिंपल फ्यूचर टेंस. सो दैट मीन्स समर विल कम सून, समर आएंगी ही, कंपल्शन है, एक कंपल्सरी है कि ये एक्शन होगा ही. नेक्स्ट इज व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू. जब मैं घर आऊँगा मैं तुमको कॉल करूँगा. सो दीज आर कंडीशनल सेंटेंसेज. दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड कंडीशनल ऑल्सो. बिकॉज कंडीशनल वाई वी से, बिकॉज the second action is dependent on the first action. If your first action will happen then only you will do the second one. आपका जो दूसरा एक्शन होता है, जो दूसरी क्रिया होती है, वो पहले एक्शन पे डिपेंडेंट होता है, यानी जब आप घर जाओगे तभी आप कॉल करोगे. ओके, सो नेक्स्ट इज आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल दिस टू एनीवन. मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं ये किसी को नहीं बताऊँगा. सो हेयर व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग प्रॉमिस, दैट मीन्स श्योरनेस. इसके अलावा इट शोज थॉट्स, विचार बताता है. प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी. अजम्पशन, अनुमान बताएगा. फियर्स अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर में आपका कोई भी विचार हो, कोई प्रोडिक्शन हो, भविष्यवाणी हो, कोई अनुमान हो, कोई श्योरनेस हो कि मीन्स ये वर्क होगा ही, एंड देन कोई फियर हो या कोई डर हो, तो वो किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर शो करता है. आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल दिस टू एनी वन. मैं वादा करता हूँ कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा. सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये श्योरनेस दिखा रहा है. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? सो लेट्स सी. कॉन्टिन्यू मीन्स होता है जारी रहना,
एंड फ्यूचर मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर यानी भविष्य. सो भविष्य में जो भी क्रिया जो भी एक्शन कंटिन्यू रहेगा दैट विल कम अंडर future continuous tense. Let's see the definition. It talks about an action that will occur in the future and is expected to continue for a while. एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो आपका फ्यूचर में होगा एंड इज एक्सपेक्टेड और ऐसी आशा की जा रही है कि वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में कुछ समय के लिए. Means it talks about an action that will start in future and will continue for some time in future. Okay, रहा होगा रही होगी. So let's see the examples to understand it. First of all, let me tell you the helping verb of future continuous tense is shall be and will be. हम I V they के साथ shall be लगाते हैं and with the remaining subjects हम will be लगाते हैं plural also. Okay. The main verb is first form plus ing. So the sentence is they shall be participating in the tournament. वो tournament में participate कर रहे होंगे. फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेट करना और कुछ समय तक वो क्रिया जारी रहेगी, पार्टिसिपेट करते रहेंगे. बिकॉज ऑफ दे हमने यहाँ पर शेल लगाया है. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी विल बी सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम. वो ऑडियंस के सामने फर्स्ट टाइम गा रही होगी. सो शी के साथ हमने यहाँ विल बी लगाया है एंड सिंगिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ओके. सो वो फर्स्ट टाइम ऑडियंस के सामने गा रही होगी. सो लेट्स सी द फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन फॉर्म future continuous tense. So let's see the formula of future continuous tense. As I already told you, the helping verb is will be and shall be. So let's see the formula of positive sentences. First here it is written subject plus will be plus first form of verb plus object plus question mark. Okay. Sorry, not question mark, plus full stop because it is positive sentence plus full stop. Object is not being written here but it is compulsory. Okay. Subject आएगा then will be shall be according to the subject, verb first form plus ing and then object and then full stop. So let's see the negative formula of negative sentences. Subject will be shall be according to the subject, then not आएगा, sorry, not will be and shall be. Here not will come between will and be. अगर आपका helping verb होगा will be, so will not प्लस बी शैल बी होगा, शैल नॉट प्लस बी, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. ओके. सो यहाँ नॉट कहाँ आएगा आपका, रिमेंबर दिस थिंग, विल बी के बीच में. सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब. सो यहाँ क्या चेंज रहेगा, सब्जेक्ट विल कम बिटवीन विल एंड बी. इफ योर हेल्पिंग वर्ब इज विल बी, सो विल सब्जेक्ट be verb first form plus ing which is also called present participle plus object plus question mark. Okay, so let's see the example to understand it better. First here it is written when you come tomorrow they will be playing tennis. जब तुम कल आओगे तो वो टेनिस खेल रहे होंगे. So what it is showing, it is describing interrupted actions in the future. Means interrupted means बीच में कोई एक्शन हो रहा है, बीच में रोक कर. जब तुम कल आओगे तो वो टेनिस खेल रहे होंगे. नेक्स्ट इज एट 12 o'clock टुमारो वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल. कल 12 बजे हम स्कूल में लंच कर रहे होंगे. सो व्हाट इट इज शोइंग, टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. प्रोग्रेस मीन्स कोई भी ऐसा एक्शन जो एक स्पेसिफिक टाइम यानी एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में हो रहा होगा. नेक्स्ट इज अनफॉर्चुनेटली सी लेवल्स विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 years. अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो सी लेवल है यानी समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है 20 सालों से लगातार. तो यहाँ क्या दिखा रहा है, टू रेफर टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर. एक ऐसा एक्शन दिखा रहा है जो अभी भी हो रहा है और हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा अनुमान है कि वो फ्यूचर में भी होगा. मीन्स सी राइज जो है, जो समुद्र का स्तर है जल का, वो बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी बढ़ता रहेगा. नेक्स्ट इज विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट. क्या तुम अपने दोस्त को पार्टी में ला रहे होगे. सो हेयर व्हाट इट इज शोइंग, इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर. आप किसी फ्यूचर के बारे में विनम्रता के साथ पूछ रहे हैं. नेक्स्ट इज ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक. वो अगले हफ्ते हमें मिलने आ रहा होगा. सो इट इज शोइंग, इट इज एम्फेसाइजिंग फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशन. फ्यूचर में जो भी होने वाला है, जो भी इंटेंशन है, जो भी इरादे हैं, उन पर जोर दे रहा है. नेक्स्ट इज व्हेन आई अराइव एट द पार्टी एवरीबडी विल बी सेलिब्रेटिंग, सम विल बी डांसिंग. जब मैं पार्टी में आऊंगा तो सब
सेलिब्रेट कर रहे होंगे और कुछ लोग डांस कर रहे होंगे. सो यहाँ क्या शो कर रहा है? टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर. मैं पार्टी में जाऊंगा, सो इट इज शोइंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द पार्टी, के पार्टी में कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा. नेक्स्ट इज शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड ही विल बी कुकिंग डिनर. वो टीवी देख रही होगी और जो बॉय है ही वो कुकिंग कर रहा होगा, मीन्स डिनर बना रहा होगा. यहाँ क्या दिखा रहा है? टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर. पैरेलल मीन्स होता है समांतर, मीन्स एक जैसे जो एक्शंस होते हैं. सो जो एक जैसे एक्शन है, लाइक वो अगर टीवी देख रही है तो वो वहां पर डिनर कुक कर रहा है. सो दीज टाइप ऑफ sentences will come under future continuous tense. So let's see the next topic. Our next topic is future perfect tense. So let's see what is future perfect tense. It refers to an action that will start and be completed at a definite time in the future. कैसे एक्शन के बारे में बात करता है? वो एक्शन जो आपका फ्यूचर में स्टार्ट होगा और एक डेफिनिट टाइम पर अंत होगा उसका. मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा, उसी टाइम पर वो फ्यूचर आपका एंड होगा. सो विच टाइप ऑफ सेंटेंस विल कम अंडर future perfect tense? An action that will start in future and be completed at a definite time in the future. एक particular time, if a particular time is being given in the sentence, तो आप recognize कर सकते हो that it is future perfect tense. So let's see the example. First of all, let me tell you that the helping verb is will have and shall have, and the main verb is past participle, that is third form of verb. Okay. So the sentence is they will have finished shopping for groceries by 3 p.m. Groceries means जो भी उनकी सब्जियां वगैरह की शॉपिंग है वो 3 बजे तक उसे पूरा कर चुके होंगे. So here a particular time is given, that is 3 p.m. Next is the children will have grown up by the time this house is built. जब तक यह घर बनेगा जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके होंगे. So यहाँ टाइम क्या दिया है? by the time the house is built, जब तक ये घर बनेगा. So in future perfect tense a particular time is being given कि आपका जो एक्शन है वो particular time पर पूरा होगा. Okay, so let's see the formulas to understand that how can we form a future perfect tense. So let's see how we can form future perfect tense. So as I have already told you that the helping verb is will have and shall have, and the main verb is past participle, which is also called third form of verb. Okay, so the formula will be subject will have shall have plus third form of verb plus object plus full stop, and the formula of negative is subject will not have. So will have not have will not have shall not have plus third form of verb plus full stop. Affirmative will subject have third form of verb plus object plus question mark. So let's see the examples. By 8 o'clock tomorrow I will have taken off for Japan. कल 8 बजे तक मैं जापान के लिए निकल चुका होऊंगा. So it is showing, it is talking about an action that will finish before a certain time in the future. एक जो पर्टिकुलर सर्टेन निश्चित समय दे रखा है उसमें ही वो फिनिश हो जाएगा. बिफोर अ सर्टेन टाइम यानी उससे पहले ही फिनिश हो जाएगा. यानी 8 बजे तक मैं जापान के लिए निकल चुका होऊंगा, मीन्स 8 बजे से पहले ही जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज शी विल हैव लर्न चाइनीज बिफोर शी मूव्स टू चाइना. इससे पहले कि वो चाइना जाए वो चाइनीज सीख चुकी होगी. सो हेयर इट इज टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक्स प्लेस. मीन्स इससे पहले कि दूसरा इवेंट स्टार्ट हो, दूसरा एक्शन स्टार्ट हो, उससे पहले ही पहला एक्शन जो है वो फिनिश हो जाएगा. सो मीन्स बिफोर शी विल गो टू चाइना, उससे पहले ही शी विल लर्न चाइनीज. चाइना जाने से पहले ही वो चाइनीज लैंग्वेज को सीख लेगी. नेक्स्ट इज द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ. यानी अभी ही जो गेस्ट हैं वो होटल में पहुंच चुके होंगे. हेयर इट इज शोइंग द कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट. एक अवधि के बारे में बता रहा है कि जो आपका एक्शन है वो जो आने वाला मोमेंट है उसमें हो चुका होगा. सो जो आई गेस वो द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ. यानी अभी तक जो गेस्ट हैं वो होटल में पहुंच चुके होंगे. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो लेट्स सी. So what is future perfect continuous tense? It is a mixture of perfect and continuous also. So let's see. It refers to an action which will begin in the future and will continue a while till a given moment. ये एक ऐसे एक्शन को रेफर करता है, एक ऐसे एक्शन, ऐसी क्रिया को संबोधित करता है जो फ्यूचर में बिगिन होगी, फ्यूचर में शुरू होगी और एक
कंटिन्यू रहेगी, फ्यूचर में शुरू होगी और कंटिन्यू रहेगी जब तक कि एक जो मोमेंट दिया है, जो समय बताया गया है, जब तक कि वो समय नहीं आ जाता है। ओके, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और जो समय दिया है पर्टिकुलर, उस समय तक वो चलता रहेगा और उसी समय पर आकर वो पूरा हो जाएगा। दैट विल कम अंडर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। हियर इट इज रिटन, so the helping verb is will have been and shall have been, and the main verb will be first form of verb plus ing. So the sentence is, I will have been studying English for 2 years by the end of next year. अगले साल के अंत तक मैं 2 साल तक इंग्लिश पढ़ चुका होऊंगा। सो यहाँ आप सोच रहे होंगे दैट आई हैव यूज्ड विल विद आई, जबकि आई के साथ शैल आता है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स हम शैल और विल का यूज़ करते हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट मॉडर्न ग्रामर, सो मॉडर्न ग्रामर में अब हम विल जो है वो हर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। मींस शैल जो है वो ओल्ड ग्रामर में यूज़ किया जाता था। पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो अभी भी शैल एंड विल ही होता है, बट मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग आप विल सारे सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई विल इज हियर। आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल के अंत तक मैं 2 साल तक अंग्रेजी जो है वो पढ़ चुका होऊंगा। नेक्स्ट इज, ही विल हैव बीन ट्रेनिंग अंडर द नेशनल कोच फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत तक वो 2 साल के लिए जो नेशनल कोच है उनके अंडर ट्रेनिंग कर चुका होगा। नेशनल कोच जो है, जो नेशनल लेवल पर कोचिंग देते हैं, सिखाते हैं, उनके अंडर वो इस साल के अंत तक जो अपनी ट्रेनिंग है वो 2 साल की पूरी कर चुका होगा। सो अ पर्टिकुलर टाइम इज बीइंग गिवन हियर, लाइक यहाँ दिया है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, सेकेंड में भी दिया है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। Okay, so that is future perfect continuous tense. The action will start in future and will continue till a given moment in the future. जो future में एक particular moment दिया है तब तक continue रहेगा और उसके बाद वो पूरा हो जाएगा। So let's see the formula how you can form the sentences of future perfect continuous tense. So as I have already told that the helping verb is will have been and shall have been. Okay, so I will tell you the formula of positive sentences first of all. By the sign you are able to understand. It will be subject plus will have been, shall have been according to the subject, plus first form of verb plus ing, plus object plus फुल स्टॉप, विच इज़ नॉट गिवन, बट जो आगे का होता है वो सेम ही रहता है। सो सब्जेक्ट रहेगा, विल हैव बीन रहेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा। सेंटेंसेस, आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। सो आई सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग हो गया मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स फॉर 3 months। अब यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि मैं 3 महीने तक जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, वो खा चुका होऊंगा। ओके, the second one is she will not have been, I won't have been eating vegetables for 3 months। जो हमारा will not होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन में want भी लिख सकते हैं। सो हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट will not have been, यानी will have been में हमारा not कहाँ आएगा, will के बाद, will not have been, shall not have been, plus first form of verb plus ing plus object plus full stop। So the sentence will be I won't have been eating vegetables for 3 months। I सब्जेक्ट हो गया, will not have been आपका वर्ब हो गया, देन मेन वर्ब हो गया eating and vegetables for 3 months आपका ऑब्जेक्ट और एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो ऑब्वियसली आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सो जैसे हमने नॉट लगाया था, हम क्या करेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हमारा हैव बीन आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो हमारा सेंटेंस होगा, विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। क्या तुम अगले 3 महीने के लिए सब्जी खा चुके होगे, सब्जियां खा चुके होगे। सो विल क्या हो गया, आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, देन यू आ गया आपका सब्जेक्ट, देन हैव बीन आपका कंप्लीट हुआ, ईटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वेजिटेबल्स फॉर 3 months हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट इज रिटन, जेम्स विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बाय द टाइम ही लीव्स फॉर एशिया। जब वो एशिया के लिए निकलेगा जेम्स, तो वो यूनिवर्सिटी में 1 साल से भी ज़्यादा समय तक पढ़ा चुका होगा। एशिया के लिए निकला नहीं है, एशिया के लिए निकलेगा, लेकिन जब निकलेगा तब तक उसका जो एक्शन है कि वो टीचिंग एक यूनिवर्सिटी में 1 साल तक
1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए कर चुका होगा। सो यहाँ क्या शो कर रहा है, टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि कोई जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं आ जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है, तब तक वो जो क्रिया है वो जारी रहेगी। नेक्स्ट इज आई विल बी टायर्ड व्हेन आई गेट होम बिकॉज आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर ओवर एन आवर। मैं जब घर पहुंचूंगा मैं थक चुका होऊंगा क्योंकि मैं 1 घंटे से ज़्यादा वॉक कर चुका होऊंगा। So here what it is showing, it is talking about something that finishes just before another time of action. तो ये एक एक्शन कब आपका पूरा होगा, इससे पहले कि दूसरा एक्शन स्टार्ट हो। सो मैं जो हूँ वो थक चुका होऊंगा, जब तक मैं घर पहुँचूंगा मैं थक जाऊंगा क्योंकि मैं 1 घंटा चलूंगा। ओके, सो थकने से पहले आपका कौन सा एक्शन चल रहा है कि आप कंटिन्यू चल रहे हो, वॉक कर रहे हो। घर पहुँचने से पहले आप वॉक करते हुए जा रहे हो। ओके, सो दैट वर द सेंटेंसेज ऑफ